Hello people, we are going to study Essay 230 Audit Documentation. As per Essay 230, definition of audit documentation is a record of audit procedures performed, audit evidence obtained and conclusions reached. Audit documentation is also known as working paper. So ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी हम ऑडिट के टाइम पे परफॉर्म करते हैं, ऑडिट एविडेंस जो भी हमें मिलते हैं एंड कंक्लूजन जिस पे हम पहुंचते हैं, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने को बोला जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. इसको मैं ऐसे लर्न कर सकते हैं लाइक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ AP परफॉर्म्ड, AE ऑब्टेन्ड एंड C रीच्ड. AP परफॉर्म्ड, AE ऑब्टेन्ड एंड C रीच्ड. Now, nature and purpose of audit documentation. Basic. First, we are going to study basic. So, basic audit documentation act as a evidence for the auditor's basis for a conclusions about the achievement of the overall objectives of the auditor, and evidence that the audit was planned and performed in accordance with essays and applicable legal and regulatory requirements. So audit documentation होता है ना, वो एक एविडेंस की तरह एक्ट करता है कि ऑडिटर्स के बेसिस जो वो कंक्लूजन निकालता है अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, और एविडेंस की जो भी हमारे ऑडिट थी उसको हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से प्लान एंड परफॉर्म किया था. नाउ एडिशनल पर्पस में फर्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंस की तरह भी इसको हम बोल सकते हैं. फर्स्ट, प्लान एंड परफॉर्म. Importance of audit documentation or additional purpose. So plan and perform, assisting the engagement team to plan and perform the audit. Second, supervision, assisting members of the engagement team responsible for supervision to direct and supervise the audit work and to discharge their review responsibilities in accordance with Essay 220. Third, accountability, enabling the engagement team to be accountable for its work. Fourth, future audits, retaining a record of matters of continuing significance to future audit. जो भी ऐसे मैटर होते हैं जो हमारे फ्यूचर ऑडिट में भी उसकी इम्पोर्टेंस है या वो कोई सिग्निफिकेंस रखते हैं फ्यूचर ऑडिट में, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने में. And fifth, QCR, quality control review and inspection, enabling the conduct of quality control reviews and inspection in accordance with SQC1. Inspection here is talking about internal inspection. SQC1 is standards on quality control 1. Sixth, external inspection, enabling the conduct of external inspection according to applicable legal, regulatory और other requirements. अगर किसी को हमारी इंस्पेक्शन करनी है, एक्सटर्नली कोई इंस्पेक्ट करने आ रहा है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंट हेल्प करते हैं उसको कंडक्ट कराने में, उसके एक्सटर्नल इंस्पेक्शन को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं. फोर्थ, now auditor's responsibility for failure to detect fraud and error. See, as per Essay 240, we are studying Essay 230, but Essay 240 we will study Essay 240 further, but Essay 240, as per Essay 240, the responsibility for the prevention and detection of fraud and error rests with the management. Auditor is not responsible to prevent and detect fraud and error. Its responsibility rests with management. जो फ्रॉड को डिटेक्ट करना और फ्रॉड से बचाना और एरर्स को डिटेक्ट करना, उससे रोक के रखना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि ऑडिटर की. और ये हमें कहाँ बताया गया है? Essay 240 में. और मैनेजमेंट इसको कैसे करती है? बाय इम्प्लीमेंटिंग एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल को अपने इतना गुड क्वालिटी का रखना चाहती है, इतना अच्छा रखना चाहती है जिससे कि ये जो फ्रॉड एंड एरर हैं इसके रिस्क कम हो. फ्रॉड और एरर को मैनेजमेंट पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकती है, लेकिन उसको कम कर सकती है. The auditor is not responsible for prevention, detection and correction of misstatements. ऑडिटर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है जो मिसस्टेटमेंट्स की प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन होती है. एक तो उसके ऊपर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग एज पर Essay 200 वो ये भी एप्लीकेबल होते हैं ऑडिटर. तो वो ऑडिटर सेज कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स. नाउ इफ़ ऑडिटर इज़ इन डाउटफुल सिचुएशन, अगर ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम पे कहीं डाउट होता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, लाइक मिसस्टेटमेंट है और समथिंग लाइक दैट, तो
he should not ignore it, he cannot ignore it, and the auditor should extend his procedure to confirm dispel the doubt. ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स को बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ के देखना चाहिए, या तो उस डाउट को कंफर्म करो, या तो अगर तुम्हें कोई डाउट हो या तो उसको कंफर्म करो कि हाँ ये चीज़ है जिस पे मुझे डाउट था, ये चीज़ है गलत हो रही है, या तो उसको ख़त्म करो कि मैंने सोच होता था ऐसा कुछ नहीं है, उसको डिस्पेल करो. इफ़ देयर इज़ सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर बाद में हमें पता चलता है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ़ रिमेन्स अ डीप लेड फ्रॉड इन द अकाउंट्स. अगर हमें बाद में पता चलता है कि कोई सब्सिक्वेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो ऑडिटर उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है अगर वो डीप लेड फ्रॉड होते हैं, एंड विच मे नॉट कम टू लाइट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन. जैसे हम नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट में जो डीप लेड फ्रॉड में जिसको जानबूझ के किया गया कंसील करने के लिए, जिसको जानबूझ के किया गया इस तरीके से कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑडिट नॉर्मली करते हुए उसमें पता नहीं चल सकता है. एंड प्रोवाइडेड दैट ऑडिटर वॉज नॉट नेग्लिजेंट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल कब नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट ऑडिटर वॉज नॉट नेग्लिजेंट, अगर ऑडिटर को कुछ पता चला हो तो उसने ध्यान दिया हो. ऑडिटर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजेंट. वॉज नॉट नेग्लिजेंट हेयर मीन्स ऑडिटर कब नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा, अगर उसने इफ़ ही हैज़ कैरिड वर्क इन अकॉर्डेंस विद एसेस और एंड एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन. अगर ऑडिटर ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डेंस में काम किया है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं उसके अकॉर्डेंस में काम किया है. और जो अगर हमें सब्सिक्वेंट कुछ मिसस्टेटमेंट पता चलती है तो उसमें हम फेलियर ऑफ ऑडिट नहीं कह सकते. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ ऑडिट. नाउ ऑडिटर हैज़ परफॉर्म्ड इन अकॉर्डिंग्स विद एसेज एंड लॉज एंड रेगुलेशंस. जो हमने यहाँ पढ़ा था, इफ़ हैज़ कैरिड वर्क इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, तो उसे नेग्लिजेंट नहीं माना जाता है. ये इसको क्या बोलते हैं, अगर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, इसको हम डिटरमाइन करते हैं. इज डिटरमाइंड बाय ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, सुटेबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. नाउ फैक्टर्स affecting form, content and extent of audit documentation. First, size and complexity. Second, nature of audit procedures to be performed. Third, risk of material misstatement that is identified. Fourth, significance of audit evidence obtained. Fifth, the audit methodology and tools used. Sixth, basis of conclusions. And seventh, nature and extent of exceptions. ये फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट को. दिस सेवेंस आर फैक्टर्स. यहाँ पर हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर हम आते हैं कि फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता कैसा है. ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन सच अ वे दैट इज सफिशिएंट फॉर एन एक्सपीरियंस्ड auditor to understand. So experienced auditor होता कौन है, एक्सपीरियंस ऑडिटर जो भी इंडिविजुअल जिसके पास प्रैक्टिकल ऑडिट का एक्सपीरियंस और रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग हो ऑडिट प्रोसेसेस की, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, और बिजनेस इन्वायरमेंट जो एंटिटी में बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करता, और ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज रिलेवेंट टू एंटिटीज इंडस्ट्रीज. जो ये सब चीज़ के पास जिसकी रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग रखता है, जिसके पास प्रैक्टिकल ऑडिट एक्सपीरियंस होता है, उसे हम एक्सपीरियंस ऑडिटर बोलते हैं. So, auditor shall prepare audit documentation in such a way that is sufficient for an experienced auditor to understand nature, timing and extent of audit procedure. AP here is audit procedures. अभी हमने आगे पढ़ा NET of AP. रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, जो हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया उसका रिजल्ट क्या आया. सिग्निफिकेंट मैटर्स, कंक्लूजन्स रीच्ड एंड प्रोफेशनल जजमेंट मेड. The auditor shall record important matters while documenting the NET, nature, timing and extent of audit procedures performed. First, identifying characteristics of specific items or matters tested, that is assertions tested. Who performed the audit work,
and date on which such work was completed. Who reviewed the audit work performed? किसने रिव्यू किया ऑडिट वर्क जो परफॉर्म हुए थे. Now there are some examples of audit documentation, like जो audit programs होते हैं, checklist बनाते हैं, analysis किया जाता है, summaries of significant matters, letters of confirmation and representation, issue memoranda. हाँ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ एंटिटीज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. हम ये नहीं कह सकते कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम एक सब्सटीट्यूट की तरह की रहन दो, हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो हैं ही हैं. नो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सेपरेट है, एंटिटीज़ के अकाउंटिंग रिकॉर्ड सेपरेट हैं. बट हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को पार्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कैन बी इंक्लूडेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के कुछ पार्ट्स को हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है. Now, documents which auditor need to include. Notes. Documents which auditor need not include. जो डॉक्यूमेंट जो ऑडिटर को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट, नोट्स दैट आर इनकम्प्लीट और प्रीलिमिनरी थिंकिंग. नोट्स जो जैसे अब हम रफ वर्क करते हैं, इट्स लाइक अ रफ वर्क या प्रीलिमिनरी थिंकिंग, हम कुछ सोच रहे होते हैं, जो वो सब होते हैं उसको रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास फाइनल थिंकिंग हमारी और फाइनल नोट्स होते हैं. सेकेंड, प्रीवियस कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल एरर और अदर्स. कोई हमारी एरर होती है डॉक्यूमेंट्स में, उसको हम सही करके न्यू कॉपी बनाते हैं, तो हमें ओल्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है. डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके डुप्लीकेट्स बनाए होते हैं, उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है. सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ना, ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ओनर कौन होता है? तो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, अनलेस अदर, अगर कोई हमें लॉ या रेगुलेशन अदर से नहीं बोलता, अगर अलग से नहीं बताता है, तब तक हम यही मानते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर. He may at his discretion make portion or extracts from audit documentation available to clients, provided such disclosure does not undermine the validity of work performed. Here means कि अगर जैसे अगर ऑडिटर चाहे तो कुछ उसके एक्सट्रैक्ट्स या कुछ पोर्शन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अपने क्लाइंट्स को शो कर सकता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये नहीं होना चाहिए कि जो वो ऑडिट सच डिस्क्लोजर जो वो अपना ऑडिट का वर्क परफॉर्म करेगा उसकी वैलिडिटी या अंडरमाइन हो जाए. क्यों? जैसे अगर वो यही बता दे कि हम ये चेकिंग करने वाला है ये वो, तो मैनेजमेंट उस चीज़ के बारे में पहले से जान के उसको कंसील करने की या उसको सही करने की या उसको हाइड करने की चांसेस हैं. एंड इन केस ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट, द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर और ऑफ हिज पर्सनल. ऑडिटर इंडिपेंडेंट होने चाहिए अपने डिसीजन में, किसी और की वजह से उसका डिसीजन रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए. नाउ ऑडिट फाइल इज़ वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ऑडिट फाइल क्या होता है कि हम वन और मोर फोल्डर और स्टोरेज मीडिया हम फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो क्या containing the records that comprise the audit documentations for a specific engagement. ऑडिट फाइल का मतलब ये होता है जो भी हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उसके रिकॉर्ड्स वगैरह हम वन और वो फोल्डर में स्टोरेज मीडिया में फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिस भी तरीके से मेंटेन करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक इंगेजमेंट. Now, preparation of audit documentation. So, audit documentation should be prepared on timely basis. Timely basis पे prepare करने पे this helps to enhance the quality of audit and if it helps in effective review and evaluation of audit evidence obtained. Second, documentation prepared आफ्टर ऑडिट वर्क इज़ लेस एक्यूरेट देन प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग. जो यहाँ पर हम पढ़ रहे होते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये हम ऑडिट के टाइम पे ड्यूरिंग ऑडिट की बात कर रहे होते हैं कि जो ड्यूरिंग ऑडिट हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं वो हम टाइमली बेसिस पे करेंगे तो उसकी क्वालिटी इनहेंस होगी, हमें हेल्प करेगा फर्दर रिव्यू और एक्ट एज अ ऑडिट एविडेंस करेगा. लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑडिट वर्क होते हैं वो उतने एक्यूरेट और उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने ड्यूरिंग वाले होते हैं. नाउ moving on to assembly of final audit file. Here we are talking about after audit work. After audit work,
ये जब हमारा ऑडिट हो जाता है उसके बाद ये प्रोसेस किया जाता है. फर्स्ट, ऑडिटर शैल असेंबल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल. ये प्रोसेस होता है, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड शुड बी डन ऑन टाइमली बेसिस. सेकेंड, as per SQC 1, time limit within which assembly of final audit file is done should not be more than 60 days. should not be more than 60 days कि 60 days के अंदर जो हमारी फाइनल ऑडिट फाइल होती है वो रेडी हो जानी चाहिए. आफ्टर व्हाट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट. जब ऑडिटर की रिपोर्ट आती है उसके बाद 60 डेज के अंदर ही अंदर हमारी फाइनल ऑडिट फाइल असेंबल हो जानी चाहिए. थर्ड, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर और ड्राइंग न्यू कंक्लूजन्स. इस प्रोसेस, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसमें बस हम असेंबल वगैरह करते हैं फाइल को और सबमिट करनी रहती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन सारी होती है. इस पर कोई हम ऑडिट का काम नहीं हो रहा है यहाँ. ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है. और न्यू ऑडिट प्रोसीजर, कोई भी हम न्यू ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाते हैं या कोई न्यू कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते हैं. चेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर कैन बी मेड. ऐसे नॉर्मली उसमें जैसे हम कोई न्यू कंक्लूजन नहीं ला सकते हैं, न्यू ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा सकते, लेकिन फ्यू चेंजेस जो हम कर सकते हैं, कौन से नेचर के, जो एडमिन नेचर के चेंजेस हो गए वो हम कर सकते हैं. लाइक deleting or discarding superseded documentation, sorting, collating and cross referencing work paper. sorting like उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगाना या सीरियल वाइज लगाना. इन सब चीज़ों को करने में ये सब चेंजेस हम कर सकते हैं, नॉर्मल से चेंजेस जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के. फिफ्थ, द ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड. ऑडिटर जो होता है उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिलीट नहीं करना चाहिए उसके रिटेंशन पीरियड से पहले. और रिटेंशन पीरियड होता है 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट देता है उसके बाद से 7 years तक हमें ऑडिटर को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है. Now, completion memorandum or audit documentation summary. It may be helpful to prepare and retain as part of audit documentation summary that describes significant matters identified, how they were addressed, and facilitate effective and efficient review and inspection of audit documentation. Fourth, it will be helpful for auditor to consider that he is able to achieve the objectives of audit and standards on auditing. सो हमें इसको हम कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी बोलते हैं. इसको मेंटेन करने से हमें ये सब उसमें समरी में ये सब डिस्क्राइब होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट मैटर्स मीन्स इंपॉर्टेंट मैटर्स जो भी हमें मिले थे ऑडिट के टाइम पे, उसको कैसे हमने डील किया था, कैसे एड्रेस किया था. और ये सब हमें इफेक्टिव फैसिलिटेट, जो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी होती है, ये इंस्पेक्शन वगैरह करने में हेल्प करती है. Now, matters arising after date of auditor's report. If in exceptional circumstances auditor performs new or additional audit procedures or draws new conclusion after date of audit report. Audit report दे दी गई उसके बाद अगर कोई new conclusion या new audit procedure अगर perform करता है auditor, the auditor shall document circumstances encountered, new AP means audit procedures performed, AE obtained, audit evidence obtained, and conclusions reached and their effect, by whom and when the changes were made and reviewed. अगर ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेट के बाद अगर कुछ चीज़ से उसे पता चलती है तो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए. शैल डॉक्यूमेंट, उसे वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए जो भी सर्कमस्टांसेस थे, फिर जो भी उसने नए प्रोसीजर्स लगा, एविडेंस मिले उसे, कंक्लूजन जिस पे वो पहुंचा, और किसने, बाय हुम एंड व्हेन द चेंजेस वेयर मेड एंड रिव्यूड. नाउ, documentation of significant matters and related significant professional judgment. Judging the significance of matter requires an objective of analysis of facts and circumstances. Judging the significance of matter requires an objective analysis of facts and circumstances. Important factors that determine the form, content and extent of audit documentation is the extent of professional judgment. So higher the professional judgment, higher the extent of documentation,
रिक्वायर्ड। सो जितना ज़्यादा प्रोफेशनल जजमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी इन्वॉल्व होते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, जो हमारे प्रोफेशनल जजमेंट जो लगाता है उसके डॉक्यूमेंटेशन उसके करने से हमें क्या हेल्प होती है। फर्स्ट, एक्सप्लेनिंग ऑडिटर्स कंक्लूजन्स, reinforcing the quality of judgment, reviewing audit documentations, carrying out subsequent audits. Now, some examples of significant matters. Evidence resulting in modification of opinion or could lead to inclusion of emphasis on matter paragraph. Second, results of audit procedures indicating need to revise ROMUM. ROMUM means risk of material misstatement, or indicating that financial statements are materially misstated. ये एग्जाम्पल्स है सिग्निफिकेंट मैटर्स के, कि कोई भी हमें अगर ऐसा एविडेंस मिलता है कि जो हमारी ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकता है, या एम्फेसिस ऑफ मैटर के पैराग्राफ को इंक्लूड करने पे हमें बोल सकता है, ऐसा कोई मैटर हो तो ये एक सिग्निफिकेंट मैटर कहलाता है। सिग्निफिकेंट मैटर में जिसकी कोई इंपॉर्टेंस हो। सेकेंड, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जिससे लाइक हमने अपना रोमम अगर लो किया था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक में अगर हमने अपना रो प्रेडिक्ट किया था तो उसे अगर हम हाई देख रहे हैं, ऐसा ऑडिट प्रोसीजर के रिजल्ट्स की वजह से आ रहा है कि रोमम हाई है, और इंडिकेटिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो ये सब एग्जाम्पल है एक सिग्निफिकेंट मैटर्स के। ना थर्ड, मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, जो भी मैटर्स आगे जाने पे एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रिस्क रखते हैं, लाइक ये हमें अच्छा खासा रिस्क हो सकता है। फोर्थ, सिचुएशन कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर। अगर हमें जैसे कोई मैटर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी हम लगा रहे हैं उसमें उसको अप्लाई करने में हमें डिफ़िकल्टी कॉज कर सकते हैं। सो टुडे नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर essay 230. Thank you. Bye bye.